Today, our chemistry topic is S block. S block elements. It is the part of inorganic chemistry of +1. Now the question arises, what are S block elements? S block elements are those in which last electron is added in s orbital of the valency shell. Its general electronic configuration is ns122. Since s subshell can have maximum 2 electrons, therefore S block element consists of two groups, first and second group. First group elements are known as alkali metal. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ਨੂੰ बेटे की बोलते हैं अल्कली मेटल्स बोलते हैं एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स are known as alkaline earth metals. Now the question arises, why first group element are called alkali metal and why second group elements are known as alkaline earth metals? We will discuss the properties of first group element first, then we will discuss the properties of second group. First group element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Now the question arises, why are they known as alkali metal? बेटे ਤੁਸੀਂ 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ alkali metal. alkali metal ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? alkali ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ alkali ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ. alkali ਕੀ ਹੈ? alkali बेटे ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ alkali metals ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ बेटे? ਜਿਹੜੇ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है लीथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, when they react with water they form hydroxide and hydrogen gas. Their hydroxide are strong base. Their hydroxide are alkali. Therefore, they are called alkaline earth metals. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ अल्कालाइन अर्थ मैटल कह देने, सॉरी अल्कली मैटल्स कह देने. जिहड़े विचों फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन दे इजली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आइन. नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव? They are highly electropositive due to their low ionization energy, and ionization energy decreased down the group. Therefore, sodium is more electropositive than lithium, and potassium is more electropositive than sodium, and their activity increased down the group.
their metallic character increased on the group. Now the question arises, why they have low ionization energy? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਮ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ 2 2s1। ਬੱਚੋ ਹੀਲੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 2 ਤੇ 2s1। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ। ਜੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਓਨ, ਨਿਓਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 10 3s1। ਜੇ ਜਰਨਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ns1। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਹੈ। if they lost one electron, their electronic configuration become stable। इन्हां दी electronic configuration बेटे की हो जाएगी? stable हो जाएगी। You know every atom have a tendency to be stable, they have a tendency to be stable। तो stable किवें होणगे? जे एक इलैक्ट्रॉन लॉस करनगे। दैट इज वाई दे हैव लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बट दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तुहानूं पेपर 'ਚ भी पुछ सकता है भी भाई जिहड़े आ अल्कली मैटल है लीथियम सोडियम पोटाशियम ये मोनोवैलेंट आयन नहीं बनाते है, डाईवैलेंट क्यों नहीं बनाते? वाई Na2 पॉजिटिव नॉट पॉसिबल। तुसी कहना भाई एक इलैक्ट्रॉन जो रिमूव हो गया और इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बन जानी है? नोबल गैस वाली, स्टेबल होगी। तो तुहानूं पता स्टेबल ने इलैक्ट्रॉन लॉस नहीं करना, कोई अनस्टेबल होना नहीं चाहता। तो इस करके ये जिहड़ा है इन्हां दी जिहड़ी सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वेरी वेरी हाई, ईवन मोर दैन नोबल गैस। दैट इज वाई they do not form divalent ion. After the removal of one electron, electronic configuration of first group element becomes stable of noble gas, and it is very difficult to remove electron from stable arrangement. That is why alkali metal have very high, exceptionally high second ionization energy. Therefore they are only monovalent and not divalent। एक तो बच्चों इन्हों की बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। Second, as we move down the group their density increase। इन्हां दी डेंसिटी बच्चों थल्ले नूं की हुंदी है? घटदी है। पर थोड़ी जी गड़बड़ है, जदों बच्चों आप डाउन दी ग्रुप जाने हैं, मैं गलत बोल गया, डेंसिटी वधदी है। लीथियम लाइटेस्ट एटम है। लीथियम तो अगे कौन है? सोडियम। सोडियम तो पोटाशियम रुबीडियम ते सीजियम ते फ्रांसियम। इत्थे बच्चों एक्सैप्शन है। Density of potassium is slightly less than sodium, otherwise density increased on the group। पर जेड़ा पोटाशियम है इनकी डेंसिटी सोडियम नालों की है? थोड़ी जी
घट है। तो डेंसिटी बच्चों हुंदी की है? डेंसिटी हुंदी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इहदा मतलब जो असी डाउन दी ग्रुप आने हैं तो पोटाशियम तो सोडियम तो पोटाशियम वेट तो वधदा ही वधदा है, साइज़ थोड़ा ज़्यादा वध जाता है। क्यों वध जाता? भी इत्थे की खास गल होगी भी बाकी नहीं वधदा इन्ना, क्योंकि इत्थे डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होंदे है और डी ऑर्बिटल का जिहड़ा इफैक्ट है वो शो होंदा है। उनदे नाल इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज थोड़ा घटदा है, इनका साइज़ वध जाता है। ठीक है बच्चों, जिहड़े अल्कली मैटल्स है ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी दे आर यूज्ड इन फोटो इलैक्ट्रिक सैल। तुहानूं पुछे भी किहड़े फोटो इलैक्ट्रिक सैल दे विच ज़्यादा यूज़ हुंदे है, तुसीं कहोगे रुबीडियम ते सीज़ीयम ज़्यादा होणगे। क्यों ज़्यादा होणगे भी? इन्हां नूं की खास है? जदों असी डाउन दी ग्रुप जाने हैं बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हुंदी है, तो जिंदी आयोनाइजेशन एनर्जी घट है तो इलैक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाऊ, थोड़ी जी फ्रीकुएंसी की लाइट नाल ही बाहर निकल आना उन्हें। फिर सानू कोई क्वेश्चन पूछे भी उनके थले फ्रांसियम पिया, उनकी तो उदों भी घट है, तुसीं इहनूं कोई छड्ड के इहने की गुनाह कीता है? तुसीं कहोगे भाई जिहड़ा फ्रांसियम है ये साडे कोले है नहीं कोई एलीमेंट, ये तो न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच पैदा हुंदा है और 21 मिनट इनका सारा हाफ लाइफ पीरियड है, ये तो रेडियो एक्टिव है, इस करके इनू असीं डिस्कस नहीं कर रहे। तो सानू पूछे भी सीज़ीएम नू क्यों यूज़ करते हैं, वाई सीज़ीएम इज़ यूज्ड इन फोटोइलैक्ट्रिक सैल? तुसीं कहोगे सीज़ीएम हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटे, एक होर बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन है, सीज़ीएम ते फ्रांसियम दोनों ही जिहड़े एलीमेंट है लिक्विड फार्म च हुंदे है। सीज़ीएम भी लिक्विड है और फ्रांसियम भी लिक्विड है, और फ्रांसियम का जिहड़ा साइज़ है वो सब तो ज़्यादा हुंदा है, सब तो ज़्यादा पीरियोडिक टेबल च सब तो ज़्यादा है, पर है रेडियो एक्टिव। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्कली मेटल्स आर स्टोर अंडर कैरोसिन। बच्चों जिहड़ी अल्कली मेटल है ना, जिवें लीथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीज़ीयम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुंदियां। जे इन्हां नूं आपां हवा दे विच रख दईए ना, दे कैच फायर। असी लीथियम ते सोडियम नूं तां कंट्रोल कर लैंदे हैं, सोडियम तो साडी लैब च भी हुंदा है, लीथियम नहीं हुंदा। जिहड़ियां अदर मैटल है ये बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑर्डीनरी लैब दे विच असीं नहीं रखते। हुण क्वेश्चन है भी वाई दे आर स्टोर अंडर कैरोसिन, इन्हां नूं कैरोसिन च ही असीं क्यों स्टोर करते हैं, तो किहड़ी इहो जी मैटल है जिहड़ी कैरोसिन च भी स्टोर नहीं हुंदी? दो क्वेश्चन है बच्चे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपां वन बाय वन फड़ते हैं क्वेश्चन। वाई अल्कली मैटल्स आर स्टोर अंडर कैरोसिन। बच्चों ना तुसीं सोडियम जिहड़ी हुंदी है ना, इनू आपां ब्लेड नाल कट सकते हैं, जिवें वैक्स हुंदी है ना, बिल्कुल वैक्स वर्गी हुंदी है, उवें ब्लेड नाल वैक्स वांगू कट्टी जाती है और इनकी बड़ी ज़बरदस्त शाइनिंग हुंदी है। पर जे आपां थोड़ा चिर इनू रख दईए हवा च तो इनू अग लग जाती है, मचन लग पैंदी है। इनू आपां हत्थ ते रख लीए, अपने हत्थ मचन आपां सुट्टनी पऊगी। ये क्यों हुंदा है बेटे? जिहड़ा अल्कली मैटल्स है दे आर हाईली इलैक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे रिएक्ट विद द मॉइस्चर, form hydroxide and hydrogen gas, and they react with the oxygen and form oxide. Both the reactions are highly exothermic. दोनों ही रिएक्शन की है बेटे हाईली एक्सोथर्मिक है। Therefore they catch fire when placed in air. इन्होंने बेटे अग लग जानी है, क्योंकि हाइड्रोजन तो वैसे ही हाईली कंबस्टिबल गैस है और उधरों रिएक्शन की है
हाईली एक्सोथर्मिक, तेनों फ्लेम अग लग जानी है। ठीक है, हुण इसे करके आप बच्चे नूं कैरोसिन च रखते हैं ताकि आप मॉइस्चर ते एयर तो बचा लीए इन्हां नूं। सैकंड क्वेश्चन है भी सारियां मैटल ही असी तेल ते पानी च रखते हैं, तुसीं कहना नहीं सारियां नहीं रखते, आ लीथियम नहीं जी रखी जाती, क्योंकि लीथियम की जिहड़ी डेंसिटी है वो कैरोसिन नालों भी घट है, तो कैरोसिन के उपर भी तैरती रहती है, पानी च तो तैरना ही है, कैरोसिन ते भी तैरती है। तो फिर असी कैरोसिन तो जो तैर ही गई तो पानी च किवें डुबो के रखांगे, इनू कैरोसिन च किवें रखांगे। तो फिर बच्चों इनू असी पैराफिन वैक्स दे विच रखते हैं। ये भी लिख लो, लिथियम इज लाइटर दैन कैरोसिन and it cannot store under kerosene and it is store in paraffin wax। ठीक हो गया बेटे। Then very important question, alkali metal give deep blue color solution with liquid ammonia। बेटे ना ये भी आप लैब दे विच एक्सपैरीमेंट कर सकते हैं और बड़ा इंटरस्टिंग भी क्वेश्चन है, ये आपां नूं कंपीटीशन एग्जाम च भी इहदे क्वेश्चन पूछ लेंदे है। जे बच्चो तुसीं एक टैस्ट ट्यूब दे विच अमोनीया पा लैंदे हो तो पीस कट के ना थोड़ा जिहा सोडियम डाउन दे विच पा लो, तां ये जिहड़ा ना डीप ब्लू कलर जिवें मोर दा रंग हुंदा है उहो जिहा सोल्यूशन बन जू और बहुत ही वधिया उनकी शाइनिंग होएगी। ठीक है, और एक होर इंटरस्टिंग गल दसदा, दैट ब्लू कलर सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। बेटे इनकी कंडक्टिविटी मैटल के कंपेरेबल होंदी है और ये पैरामैग्नेटिक होंदा है। सानूं क्वेश्चन पूछ सकता है भी ये पैरामैग्नेटिक क्यों है और इनकी इन्नी हाई कंडक्टिविटी क्यों होंदी है, मैं तुहानूं हुणे लिखाउणा इहदे आंसर दे विच। ते इनका जिहड़ा डीप ब्लू कलर क्यों बन जाता है बच्चों, जे इनका डीप ब्लू कलर लॉन्ग स्टैंडिंग होवे ना तो बड़ा कॉस्टली होवे, जिवें नीलम वर्गा रंग हुंदा इहदा, बहुत इन्ना सोहना हुंदा है, पर की हुंदा है आफ्टर सम टाइम इट डीकंपोज, इट टुट जाता है, इट रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड चेंज इनटू सोडामाइड। ठीक है, हुण इनका आंसर लिखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अल्कली मेटल लाइक सोडियम dissolve in liquid ammonia, it gave a deep blue color solution having very high conductivity। And this deep blue color solution is paramagnetic। Its blue color is due to the ammoniated electron। आ बच्चे एक इलैक्ट्रॉन के नाल अमोनीया जुड़े हुए, इन्हूं की कहते आपां अमोनीएटेड इलैक्ट्रॉन। अमोनीएटेड इलैक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन and high conductivity is due to the presence of ammoniated cation and ammoniated electron, and its paramagnetic character is also due to ammoniated electron। This question is very very important। Then reaction of alkali metal with the oxygen, lithium react with oxygen form lithium oxide, sodium
react with oxygen give sodium peroxide Na2O2, and other alkali metals, all the other alkali metal gave potassium superoxide. लिथियम ने बेटे की देना है ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, and superoxide are very useful oxide. They are used in submarine and space capsule. Then abnormal behavior of lithium. बच्चों ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन बना के लिखाना, डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम which do not resemble its other group member. लिखो नंबर 1, lithium carbonate decompose on heating, give lithium oxide and carbon dioxide, whereas sodium carbonate do not decompose on heating. इन्हें हीट करन ते डिकम्पोज नहीं होना है। नेक्स्ट, lithium hydroxide is weak base, whereas sodium hydroxide is a strong base. बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਰਡ ਸੋਡਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। थर्ड प्रॉपर्टी, lithium react with the dinitrogen at high temperature, give lithium nitride. सोडियम पोटाशियम डो नॉट रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन, रिएक्ट ही नहीं करते है। ठीक हो गया बच्चों। फोर्थ, लिथियम नाइट्रेट decompose on heating, give lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen. And sodium nitrate also decompose, but it do not give dinitrogen, ये ऑक्सीजन ही देगा कल्ले। lithium form covalent compound, whereas compound of other alkali metals are ionic। ठीक है बेटे। हुण नैक्सट टॉपिक अपना डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये बेटे आपां नैक्सट वीडियो बनावांगे, इनू तुसीं याद कर लेना।